السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے ہم لوگ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر بجا لاتے ہیں، جس کی توفیق اور اس کے فضل سے پھر سے الحمدللہ آج یہ کلاس شروع ہونے جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو پابندی کے ساتھ اس کلاس کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابھی بھی اس طرح کی کلاسوں کی اہمیت کو جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، اعلانات کرنے کے بعد بھی نہیں آتے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس طرح کی کلاسز میں شریک ہو کر فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اس سے پہلے کے جو دروس ہمارے چل رہے تھے وہ نماز سے متعلق چل رہے تھے۔ نماز کے تفصیلی مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے گئے۔ نفلی نمازوں سے متعلق ہماری بات چل رہی تھی۔ ایک نماز فرض ہوتی ہے، دوسری نفل نمازیں ہوتی ہیں۔ فرض نمازوں کے بارے میں طریقہ کار، اس کے ارکان، واجبات، سنتیں، تمام چیزیں آپ کے سامنے لائی گئی تھیں۔ اس کے بعد نفل نمازوں کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ نفل نمازوں میں ہم نے فرض نمازوں کے بعد یا اس سے پہلے جو سنت نمازیں ہوتی ہیں، جس کو سنن رواتب کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ ذکر کیا تھا نفل نمازوں میں نماز تہجد، جسے نماز تراویح بھی کہتے ہیں، اس کے مسائل، اور نماز وتر کے مسائل۔ اگر یہ تمام مسائل آپ کو جاننا ہے تو یوٹیوب کے اندر یہ ویڈیوز موجود ہیں، ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ وہاں جا کر سن کر پھر سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن آج کے اس درس میں نفل نمازوں میں ایک اہم نماز سے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنا ہے، اس کے مسائل۔ وہ ہے نماز استخارہ۔ نماز استخارہ نفل نمازوں میں ایک نماز ہے، بڑی اہمیت والی نماز ہے نماز استخارہ۔ نماز استخارہ کے سلسلے میں لوگوں کے اندر دو قسم کا مزاج پایا جاتا ہے۔ ایک طرف لوگ نماز استخارہ کن کن چیزوں میں کرنا ہے نہیں جانتے، ہر چیز میں نماز استخارہ کرتے ہیں، دعائے استخارہ کرتے ہیں ہر چیز میں۔ یہ غلط بات ہے۔ کیا ہر چیز میں دعائے استخارہ کرنا ہے، نماز استخارہ کرنا ہے، استخارہ کرنا ہے؟ ایسی بات نہیں، اس سے متعلق بات آگے آئے گی۔ دوسرے قسم کے لوگ ایسے ملیں گے جو استخارہ کرتے ہی نہیں ہیں، کسی بھی کام میں نہیں کرتے استخارہ۔ یہ بھی مزاج غلط ہے، وہ بھی مزاج غلط ہے۔ اور یہ دو غلطیاں لوگوں میں کیوں پائی جاتی ہیں؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس طرح کے کلاسز اٹینڈ کر کے نہ جاننے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ نماز استخارہ کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں تو ہر چیز میں کرتے ہیں۔ اور نماز استخارہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آج لوگ نہیں جانتے، جبکہ اللہ کی قسم لوگ اپنے زندگی کے معاملات میں نماز استخارہ کے بے حد محتاج ہوتے ہیں۔ ان کی ضرورت ہے نماز استخارہ، لیکن نہیں جاننے کی وجہ سے، نماز استخارہ کے مسائل نہیں پہچاننے کی وجہ سے کرتے نہیں، سمجھتے نہیں نماز استخارہ کی اہمیت کو۔ محترم حضرات، اسی لیے مناسب سمجھا گیا کہ نماز استخارہ سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں۔ دیکھیے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا سورۃ من القرآن۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو استخارہ سکھایا کرتے تھے، استخارہ کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا کرتے تھے، ہر معاملے میں نماز استخارہ کا معاملہ ہمیں بتایا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے۔ کیسے سکھاتے تھے آپ؟ جابر کہتے ہیں جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں نا، ویسے استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استخارہ کی کیا اہمیت ہے۔ بہرحال اس کے بعد جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے استخارہ کی دعا ذکر فرمائی، میں آگے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو ایک ایک مسئلہ ہم
जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस्तिखारा किसको बोलते हैं अरबी जुबान में? तलबुल खैर, खैर को तलब करना, खैर और भलाई को अल्लाह से मांगना, तलब करना, इसको क्या बोलते हैं? इस्तिखारा। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज इस्तिखारा में आदमी करता क्या है, दुआए इस्तिखारा में आदमी करता क्या है? करता यह है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खैर तलब करता है, अल्लाह से भलाई मांगता है वो। ठीक है, तो ये इस्तिखारा का मतलब है। और इस्तिखारा में आदमी दो काम करता है, उसी को नमाज इस्तिखारा कहा जाता है। एक काम वो 2 रकात नमाज अदा करता है, और दूसरा काम नमाज अदा करने के बाद दुआए इस्तिखारा करता है। दुआए इस्तिखारा एक दुआ है, हर आदमी को याद होना चाहिए वो दुआ, आगे मैं जिक्र करूंगा। तो 2 काम करता है, एक नमाज पढ़ता है, दूसरा इस्तिखारा की दुआ हाथ उठाकर करता है। इन 2 चीजों के जरिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से खैर का सवाल करता है, भलाई मांगता है। इसीलिए इसको सलातुल इस्तिखारा कहा जाता है, इस्तिखारे की नमाज कहा जाता है। चूंकि बंदा खैर मांगता है इसीलिए उसको नमाज इस्तिखारा कहा जाता है। दूसरा मसला, नमाज इस्तिखारा की अहमियत। इसकी अहमियत क्या है? ये हम और आपकी जिंदगी की जरूरत है नमाज इस्तिखारा। इसकी अहमियत का सबसे अहम पहलू यह है कि जिस तरीके से हमारी दूसरी चीजें जिंदगी की जरूरियात में से हैं, वैसे ये नमाज इस्तिखारा हमारी जिंदगी की एक अहम जरूरत है, हम इसको जानते नहीं। देखिए, इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी आला मकाम तक पहुंच जाए, लेकिन फ्यूचर के बारे में अल्लाह ने उसके हक में क्या फैसला किया वो नहीं जानता। वो जो मुस्तकबिल में करने जा रहा है ना कोई काम, उसका अंजाम क्या होगा उसको नहीं मालूम। उसको मालूम है क्या? आप अगर किसी औरत से शादी करने जा रहे हैं, आगे वो औरत नेक बनकर आपका अच्छा साथ देगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, फ्यूचर में कैसे मामला होगा आप नहीं जानते, वो अल्लाह जानता है। आप कोई तिजारत का काम शुरू करने जा रहे हैं, दुकान खोल रहे हैं आप, या कोई तिजारत में किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हैं आप, तो ऐसे वक्त में आदमी कभी कभार परेशान रहता है कि मैं तिजारत का काम शुरू करूं या ना करूं। कभी आदमी परेशान रहता है कि भाई वो आदमी पार्टनरशिप में बुला रहा है, पता नहीं वो आदमी बाद में धोखा देगा या अमानतदारी के साथ मेरे साथ अच्छी पार्टनरशिप करेगा, नहीं मालूम उसको। परेशान रहता है आदमी, उसके साथ पार्टनरशिप करूंगा तो मेरा भला होगा, नहीं होगा। और कभी कभार इंसान किसी औरत से शादी करना चाहता है, परेशान रहता है, कंफ्यूजन रहता है, तरद्दुद में रहता है कि उस लड़की से मैं निकाह करूं या ना करूं, तरद्दुद में रहता है। कभी अगर वालिदैन, पेरेंट्स, सरपरस्त अपनी बच्ची का निकाह किसी से करवाना चाहते हैं, किसी का निकाह का पैगाम आता है, तो फिर परेशान रहते हैं कि भाई उस लड़के के साथ मेरी बेटी का मैं निकाह कराऊं या ना कराऊं। कभी कभार आदमी इन मसाइल को लेकर इतना परेशान हो जाता है, कभी डिप्रेशन में चला जाता है, कोई काम कर ही नहीं पाता आगे बढ़ के, हिम्मत कर ही नहीं पाता आगे बढ़ के, तिजारत ना करेगा आगे बढ़ के, ना शादी करता है, न किसी मामले में आगे बढ़ता है। वजह क्या होती है? कंफ्यूजन रहता है उसको, मैं करूं क्या ना करूं, करेंगे तो अच्छा होगा या बुरा होगा, इसका ज्यादा फायदा होगा नहीं होगा, ऐसे कंफ्यूजन में चलता रहा। हमारी जिंदगी में इस तरह के मसाइल आते हैं क्या? नहीं आते हैं, यकीनन आते हैं ना भाई, यकीनन आते हैं। बहुत सारे मसाइल में होता है ऐसा मामला, छोटे छोटे मसाइल में भी कंफ्यूजन हो जाते हैं हम दुनिया के मामलात में, वो करूं क्या ना करूं। अच्छा ठीक है, बेंगलुरु जाना है आज, अगर बेंगलुरु जाऊंगा तो एक काम हो जाएगा, अच्छा 2-3 दिन के बाद भी वो काम हो सकता है, लेकिन आदमी कंफ्यूजन में है, मैं आज जाऊं बेंगलुरु या ना जाऊं, या किसी जगह मैं सफर करूं या ना करूं। कभी कभार अगर घर बनाना चाहता है या कोई घर खरीदना चाहता है, कंफ्यूजन में है कि मैं घर खरीदूं ना खरीदूं, या किराए पर चलाऊं अपना गुजारा। कभी कभार दुनिया के मामलात में कंफ्यूजन रहता है, आदमी इश्तिबाह में रहता है, मुतरद्दिद रहता है, कभी कभार फैसला नहीं कर पाता। ऐसे वक्त में सलातुल इस्तिखारा की जरूरत पड़ती है उसको, सलातुल इस्तिखारा उसकी जरूरत है। ऐसे वक्त में उसको करना है सलातुल इस्तिखारा, और ये सलातुल इस्तिखारा की बरकतों से इंसान के दिल में इत्मीनान पैदा होता है। और चूंकि इस नमाज में, इस दुआ में वो अल्लाह से खैर मांगता है, तो कंफ्यूजन उसका दूर हो जाता है,
اور آگے چل کر اس کو ایک ہمت ملتی ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو بھی فیصلہ لے کر آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ استخارہ کی اہمیت ہے۔ اور دوسری بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دنیا کے معاملے میں ہمیں استخارہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق پڑھایا کرتے تھے صحابہ کو، اے صحابہ دنیا کے ہر معاملے تم استخارہ کرو، دنیا کا ہر وہ معاملہ جس میں آپ کو تردد ہے، شک ہے، کنفیوژن ہے، کرنا کیا نہیں کرنا، ایسے ہر معاملے میں تم استخارہ کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ کیسے دیا کرتے تھے؟ جابر کہتے ہیں کما یعلمون السورۃ من القرآن، جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کی کوئی سورت پڑھایا کرتے تھے۔ کیسے بھائی؟ قرآن کی سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، مطلب اہمیت بتانا چاہتے ہیں جابر رضی اللہ عنہ۔ جب کوئی آدمی قرآن کی کوئی سورت پڑھاتا ہے کسی کو، وہ سامنے بٹھاتا ہے، اس کو بار بار سکھاتا ہے، اس کی طرف توجہ دیتا ہے، اس کی طرف پوری توجہ دے کر سکھاتا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام استخارہ کی اہمیت بتاتے ہوئے استخارہ کی تعلیم دیا کرتے ہیں۔ یہ دو باتوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز استخارہ کی کیا اہمیت ہے۔ حضرات، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی بڑی بات کہی ہے نماز استخارہ کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقین وثبت فی امرہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ انسان، وہ آدمی جس نے خالق کے ساتھ استخارہ کر لیا، مخلوقات کے ساتھ مشورہ کیا، مخلوقین سے، اور اپنے کام کو آگے بڑھانے میں محنت کیا، کوشش کیا، ایسا آدمی کبھی کسی کام میں شرمندہ نہیں ہوگا۔ تین باتیں آپ نے فرمائی۔ ما ندم من استخار الخالق، سب سے پہلی بات، جو آدمی خالق سے استخارہ کرے، خالق کا مطلب اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین سے استخارہ مطلب خیر مانگے، خیر کا سوال کرے۔ ابن تیمیہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ نماز استخارہ پڑھ کر جو آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین سے دعائے استخارہ کرے، اور دوسرے نمبر پر اس کے بعد آدمی لوگوں سے مشورہ بھی کرے کہ کیا میں کروں یا نہ کروں، ایسے لوگ جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں، جو آپ کا بھلا چاہتے ہیں، حاسدین سے نہیں، حسد کرنے والوں سے نہیں، بلکہ آپ کا جو بھلا چاہتے ہیں ان لوگوں سے آپ مشورہ کریں، نمبر 2۔ نمبر 3، اس کے بعد آپ اس کام کو کر گزریں، محنت کریں، جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں جائز کام، محنت کریں، اسباب کو اختیار کریں۔ یہ 3 کام جو آدمی کر لینا، کبھی وہ زندگی کے کسی معاملے میں پریشان نہیں رہے گا، وہ شرمندہ نہیں رہے گا، وہ خوشحال رہے گا۔ سبحان اللہ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نماز استخارہ کی کیا اہمیت ہے۔ سوال یہ ہے، یا تیسرا مسئلہ نماز استخارہ سے متعلق، نماز استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ نماز استخارہ کا طریقہ کیا ہے؟ لوگ جانتے نہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی استخارہ کیسے کرنا ہے۔ اس کا سادہ سیدھا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لے، کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو ڈاؤٹ ہے، تردد ہے، میں کروں کیا نہ کروں، ارادہ تو ہو گیا کرنے کا، کوئی کام، ایک بزنس شروع کرنا چاہتا ہے، دکان کھولنا چاہتا ہے، ارادہ تو ہو گیا دکان کھولنے کا، لیکن اس کے بعد تھوڑا کنفیوژن ہے، دکان یہ کھولوں کیا نہ کھولوں، کھولوں گا تو میرا فائدہ ہوگا کیا لاس میں جائے گا، ہاں، یا مثال کے طور پہ فلاں لڑکی کا رشتہ آ گیا، ارادہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی شادی کریں گے، لیکن پھر بھی کنفیوژن چل رہا ہے دل میں، اور لڑکی سے کریں کیا نہ کریں، یا کوئی اور لڑکی دیکھیں، کوئی اور اچھی لڑکی، کوئی اور اچھا خاندان، مطلب تردد میں، کنفیوژن میں۔ ہاں، اس طرح کے دنیا کے معاملات میں جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لے اور کنفیوژن، متردد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ بتایا، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے پڑھ لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، 2 رکعت اس کو نماز پڑھنا ہے۔ نماز میں کیا پڑھے گا وہ؟ وہی صورتیں، وہی طریقہ ہے جو عام طور سے آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ، پھر آپ کو جو سورت یاد ہے وہ پڑھ لیں آپ،
پھر جس طریقے سے آپ نماز پڑھتے ہیں نفل نماز سے پڑھ لیں، وہی طریقہ ہے. دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر کوئی دوسری سورت پڑھ لیں، رکوع اور سجدے مکمل کر کے آپ سلام پھیر دیں. اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا پڑھیں گے، جس کو دعائے استخارہ کہا جاتا ہے. کون سی دعا ہے؟ کیا دعا ہے وہ؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائے استخارہ صحابہ کو سکھائی. وہ اس طریقے سے ہے دعا: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی او عاقبت امری او عاجلہ فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي عَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ أَوْ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ. یہ دعا ہے، یہ دعا استخارہ کی مکمل دعا ہے. ہاتھ اٹھا کر آدمی یہ دعا کر لے، کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دے، اس کے نماز استخارہ مکمل ہو گئی. یہ طریقہ ہے. سوال کرتے ہیں بعض لوگ، دعا جب ہم کرتے ہیں دعائے استخارہ، تو دعائے استخارہ کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانا کیا نہیں اٹھانا؟ جواب یہ ہے کہ ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، افضل ہے، کیونکہ دعا ہے یہ. اور دعا کی قبولیت کا ایک سبب یہ ہے کہ آپ اللہ کے پاس ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. اور نبی نے فرمایا جو آدمی اللہ کے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے. تو دعا کی قبولیت کا ایک سبب ہے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں. دوسرا سوال یہ کرتے ہیں کہ دعائے استخارہ کرنے سے پہلے کیا اللہ کی تعریف کرنا ہے؟ جیسے دوسری دعاؤں میں ہم کرتے ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، پھر اس کے بعد دعائے استخارہ کرنا ہے، دعا کرنا ہے. یہ عام دعاؤں میں یہ ادب سکھایا گیا. سوال کرتے ہیں کہ کیا نماز استخارہ میں بھی ایسے ہی کرنا ہے کیا؟ کہ پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں گے، پھر نبی پر درود بھیجیں گے، پھر دعائے استخارہ پڑھیں گے؟ یہ سوال کرتے ہیں لوگ. اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث یہ بتاتی ہے کہ دعائے استخارہ میں شروع میں آپ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، نہ اللہ کی تعریف بیان کریں گے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، بلکہ ڈائریکٹ آپ 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد ہاتھ اٹھائیں گے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، یہ دعا مکمل پڑھ دیں گے. محترم حضرات، یہ نماز استخارہ کا مختصر طریقہ ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں، وہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس دعا کو یاد کیجیے آپ. یہ آپ کی ضرورت ہے زندگی. میں نے کہا نا کہ بہت سارے زندگی کے معاملات میں آدمی کنفیوژن ہوتا ہے، کرنا نہیں کرنا ہے، اور بندہ اس بات سے غافل ہو جاتا ہے، دنیا بھر کے باتیں کرے گا، ڈسکس کرے گا گھنٹے گھنٹے، کوئی فائدے کا نہیں. اچھا، ڈسکس بھی جب کرتا ہے نا تو اچھے لوگوں سے نہیں کرتا، تجربے کار لوگوں سے. ان لوگوں کے پاس بیٹھا چائے پینے گھر میں، وہاں یہاں بول رہا ہے بھائی وہ دکان شروع کرنا کیا نہیں کرنا، بس اتنی ہی بات میں کنفیوژن میں چل رہا ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ استخارہ کرے. استخارہ میں آدمی خیر مانگتا ہے، اللہ سے خیر مانگتا ہے. اللہ میں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، اس سلسلے میں اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں. آپ اس دعا کو سمجھ لیں گے نا، کبھی آپ دعا استخارہ نہیں چھوڑیں گے. مسئلہ یہی ہے نا کہ یہ جو الفاظ ہیں نا عربی کے، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا اس میں کیا مانگتا ہے بندہ. اگر سمجھ لیں گے آپ کے دل کے اندر تڑپ پیدا ہوگی کہ میں دنیا کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں استخارہ کر کے آگے بڑھوں گا. یہ جذبہ پیدا ہوگا آپ کے اندر. کیا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے تیرے سے خیر مانگتا ہوں، خیر کا سوال کرتا ہوں. اللہ کس معاملے میں خیر کا سوال؟ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں نا، کنفیوژن ہے مجھے، میں کرنا کیا نہیں کرنا. اللہ اگر شروع کرنے میں خیر ہے تو میں خیر تجھ سے مانگتا ہوں، اگر وہ کام چھوڑنے میں بھی خیر ہے میں وہ خیر تجھ سے مانگتا ہوں تیرے علم کے ذریعے. دیکھو غور کیجیے، اللہم انی استخیرک بعلمک، تیرے علم کے ذریعے. یہاں بندہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کے علم کے ذریعے خیر مانگ رہا ہے، خیر طلب کر رہا ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تجھے معلوم ہے
میرے اس کام میں خیر ہے یا شر ہے؟ تجھے معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم. اسی لیے اے اللہ تیرے علم کے ذریعے سے میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں. اللہ کتنا پیارا جملہ. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. اے اللہ تیری قدرت، تیری طاقت کے ذریعے میں قدرت مانگتا ہوں، میں طاقت مانگتا ہوں. یعنی ضرور غور کرنے کی بات ہے. آپ کوئی تجارت شروع کرنے جا رہے ہیں، کنفیوژن ہے آپ کو، تو آپ یہ دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میں وہ جو تجارت کرنے جا رہا ہوں نا، اگر اس کے اندر خیر ہے تو اے اللہ مجھے طاقت دے اس کو کرنے کی. اے اللہ مجھے آسان کر دے اس کام کو، مجھے طاقت دے. میں طاقت مانگ رہا ہوں تیرے سے، میں عاجز بندہ ہوں. اللہ تیری قدرت اور طاقت کے ذریعے میں طاقت مانگتا ہوں. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ. اللہ تیرا جو بہت بڑا فضل ہے نا، میں اس کا سوال تجھ سے کرتا ہوں. اللہ اکبر. وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. اب یہاں بندہ اللہ کے بارے میں اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. کہتا ہے اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، میں طاقت نہیں رکھتا ہر چیز پر. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے کس کام میں بھلائی ہے اور کس کام میں بھلائی نہیں ہے، میں نہیں جانتا، تو جانتا ہے. فَإِنَّكَ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. اے اللہ تو ہر غیب کی بات کو جاننے والا ہے. اب اتنا پڑھنے کے بعد بندہ کیا کرتا ہے آگے اس دعا میں؟ غور کیجیے. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي. اے اللہ اگر تو جانتا ہے میرے اس کام کو کرنے میں یا چھوڑنے میں، دیکھو اس کام کو کرنے میں یا چھوڑنے میں اگر میرے دین کے سلسلے میں بھلائی ہے، میری زندگی کے لیے وہ بھلائی ہے کرنے یا چھوڑنے میں، اگر تو جانتا ہے، یا پھر میرے زندگی میں آنے والے دنوں میں وہ انجام کے اعتبار سے خیر ہے یا شر ہے، یہ تو جانتا ہے. اگر بھلائی ہے اس کے اندر تو اے اللہ وہ میرے مقدر میں بنا دے. فقدرہ لی، میرا مقدر بنا دے. وہ بندہ کیا مانگ رہا ہے اس میں؟ اللہ اگر اس کام کو کرنے یا نہ کرنے میں بھلائی ہے تو کیا کرے اللہ؟ اس کو میرے لیے مقدر بنا دے اور میرے لیے آسان کر دے. وَيَسِّرْهُ لِي، میرے لیے آسان کر دے اس کام کو. ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، اے اللہ پھر اس میں میری اس کام میں برکت عطا فرما. اللہ کیا پیاری دعا ہے. کیا مانگ رہے بندہ ہے؟ ہاں اپنے الفاظ میں آپ مانگ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں. شارٹ دعا ہے، مختصر دعا ہے. میرے بھائیو اہمیت کو سمجھو، لوگوں کو بتاؤ. کتنی پیارے جملے ہیں. اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ اس کام میں بھلائی ہے میرے لیے تو کیا کرے اللہ؟ میرا مقدر بنا دے اس کام کو اور آسان کر دے اور برکت دے. 3 قسم کی دعائیں. ایک مقدر میں کر دے، آسان بھی کر دے. کبھی کبھار کام شروع کرتا ہے آدمی، تجارت شروع میں بڑے چیلنجز آتے ہیں، اور بزنس نہیں چل رہا، گھاٹا ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے. استخارہ کرنے کے بعد آدمی جو ہے کبھی شادی کر لے کسی عورت سے، استخارہ کے بعد تو کبھی کبھار کچھ زندگی کے معاملات میں انبن ہو رہے ہیں. یہاں پہلے سے وہ مانگ رہا ہے کہ اللہ آسان کر دے اس چیز. ثم بارک لی فیہ، پھر اس میں اللہ تو برکت عطا فرما. ثم بارک لی فیہ. اور اس کے بعد کیا کرتا بندہ؟ کیا کہتا ہے؟ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي عَاقِبَةِ أَمْرِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ. اے اللہ یہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اگر اس کے اندر میرے لیے برائی ہے، شر ہے، نقصان کا کوئی مسئلہ ہے، تو جانتا ہے. اگر تو جانتا ہے کہ اس معاملے میں میرے لیے نقصان ہے، گھاٹا ہے، ہاں اور کوئی بڑی پریشانی والی بات ہے، شر ہے، تو کیا مانگتا ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے اس میں؟ فَاصْرِفْهُ عَنِّي. اے اللہ مجھ کو جو ہے اس کام سے پھیر دے، دور کر دے. فَاصْرِفْهُ عَنِّي، اس کام کو مجھ سے دور کر دے، پھیر دے، مجھے نہیں چاہیے یہ اگر میرے لیے برائی ہے تو. وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، اور مجھے اس کام سے پھیر دے، اس کام سے مجھے پھیر دے. دونوں کے درمیان اے اللہ تو جدائی پیدا کر دے، دونوں کے درمیان جو ہے معاملے کو ختم کر دے. فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ. اے اللہ جہاں بھی خیر اور بھلائی ہے نا اس کو تو مقدر بنا دے میرے. جہاں بھی تو جانتا ہے نا وہ خیر کہاں ہے، اس کو میرے مقدر میں کر دے. وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ. آخری جملہ کتنا پیارا ہے. کہتا ہے بندہ اے اللہ
जो भी खैर है जहां भी है तू जानता है, उसकी तौफीक देने के बाद उससे मुझको राजी कर दे, उससे मुझको राजी कर दे। कभी कभार आदमी शुरू करते हुए काम परेशान रहता है, करूं क्या ना करूं, इस्तिखारा कर लेता है, शुरू कर देता है काम। तो बंदा क्या मांगता है दुआ इस्तिखारा में? अल्लाह अगर वहां कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए ना, कभी शुरू कर दिया मैं इस्तिखारा के बाद, उसके बाद भी घाटा हो गया, नुकसान हो गया, अल्लाह तो उस घाटे और नुकसान से भी मुझको राजी कर दे, मतलब अल्लाह तेरी तकदीर से मुझे राजी कर दे। सुभान अल्लाह। ये दुआ की मुख्तसर तर्जुमा और मैंने तर्जुमा आपके सामने जिक्र किया। अगर इस दुआ की शरह में हम जाएंगे तफसीर में तो बात लंबी होगी, लेकिन मैंने मुख्तसरन आपके सामने जिक्र किया ये बताने के लिए कि दुआ इस्तिखारा ये बहुत अहमियत वाली दुआ है। दुआ इस्तिखारा और नमाज इस्तिखारा को मिस नहीं करना चाहिए। हजरात, सवाल ये है, एक मसला चौथा या पांचवा हमारा दुआ नमाज इस्तिखारा से मुताल्लिक, लोग सवाल करते हैं किन चीजों में इस्तिखारा करना चाहिए, या दूसरे अल्फाज में मैं कहूं तो बहुत सारे लोग ना हर मामले में इस्तिखारा करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको यह बता देता हूं किन चीजों में इस्तिखारा करना है, किन चीजों में नहीं करना है। देखिए, दुनिया के हर मामले में चाहे छोटा हो या बड़ा हो इस्तिखारा करना मुस्तहब है, अफजल है। दुनिया का कोई भी काम, शादी करने का इरादा है, कंफ्यूजन है, इस्तिखारा करें। तिजारत शुरू करने जा रहे हैं, कंफ्यूजन है, इस्तिखारा करें। कोई दुकान शुरू करने जा रहे हैं, कंफ्यूजन है, इस्तिखारा करें। कोई घर खरीदना चाहते हैं, कंफ्यूजन है, खरीदो ना खरीदो, इस्तिखारा करें। कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कार, टू व्हीलर जो भी है, कंफ्यूजन है, अब खरीदेंगे, बाद में खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, दुआ नमाज इस्तिखारा करें। दुनिया के जितने भी मामलात है ना, दुनिया के छोटे बड़े हर मामले में आप इस्तिखारा कीजिए, ये मुस्तहब अमल है। वाज़ेह है मसला। दूसरी बात, दीन के कामों में इस्तिखारा कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, एक बड़ा अहम मसला है दीन के कामों में। इस बात को आप गौर से सुनिए। दीन के सिलसिले में जो वाजिब काम है, जो मुस्तहब काम है, उसमें आप इस्तिखारा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे दाढ़ी छोड़ना वाजिब है क्या नहीं है? जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को वाजिब करार दिया उसको करना ही है आपको, उसमें इस्तिखारा करना जायज नहीं है। इसकी मिसाल, दाढ़ी छोड़ना वाजिब है, शादी हो गई, बीवी बोल रही कि नहीं दाढ़ी मत छोड़ो, दाढ़ी काटो, तारीफ कर रही है, दाढ़ी अगर नहीं रखेंगे तो अच्छे लगेंगे, फला फला। अब आदमी ये सोचे कि भाई मैं दाढ़ी रखूं क्या ना रखूं, इसके बारे में मैं इस्तिखारा करूंगा अल्लाह से। सही है करना इस्तिखारा? करना सही है। क्यों सही नहीं है? दाढ़ी छोड़ना तो जरूरी है भाई, वो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म है, वो उसमें क्या इस्तिखारा करेंगे? आप ये बोलेंगे अल्लाह से, अल्लाह दाढ़ी छोड़ने में भलाई है तो मुझे तौफीक दे, अगर भलाई नहीं है तो मुझे मोड़ने की तौफीक दे। हाँ, यहां तो छोड़ना ही छोड़ना है, छोड़ने में ही भलाई है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। आप जमात के साथ नमाज पढ़ना जरूरी है ना मर्दों के लिए, आप इस्तिखारा करेंगे क्या? अल्लाह अगर जमात के साथ नमाज पढ़ने में खैर है तो मुझे जमात के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक दे, अगर उसमें भलाई नहीं है तो मुझे घर में अकेले में नमाज पढ़ने की तो कर सकते हैं आप, क्योंकि वाजिब चीजों में इस्तिखारा करना जायज नहीं है। वाज़ेह है मसला। हज पे जाना है, आपके पास ताकत है, टाइम है, वक्त भी है हज का, आपका नाम भी आ गया हज में, आप बोलेंगे कि नहीं मैं इस्तिखारा करके जाऊंगा, हज पे जा रहा हूं ना, हज पे अगर मेरा इस मर्तबा हज करने में खैर है तो अल्लाह मुझे आसान कर दे, नहीं तो नहीं। वाजिबात, जो चीज अल्लाह और उसके रसूल ने वाजिब कर दिया उसमें इस्तिखारा नहीं कर सकते। वाज़ेह है। इसी तरीके से जो अफजल काम है, मुस्तहब काम, उसमें भी आप नमाज इस्तिखारा या इस्तिखारा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे फराइज के अलावा मुस्तहब चीजें हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ तरगीब दिलाई। मिसाल के तौर पे फर्ज नमाजों के बाद सुन्नत नमाजें पढ़ना है ना, फर्ज नमाजों के बाद सुन्नत नमाजें पढ़ना है, वो सुन्नत नमाजें अफजल हैं, उसमें भी इस्तिखारा कर सकते हैं कि आप अल्लाह फर्ज नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने में अगर मेरे लिए खैर है तो पढ़ने की तौफीक दे, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तालीम दी है, उसकी तरफ लोगों को उभारा है। वाजिब चीजों में, मुस्तहब चीजों में इस्तिखारा करना जायज नहीं है, लेकिन जो
इबादतें कभी कभार ऐसी होती हैं कि वक्त जो होता है ना, मिसाल के तौर पे जो मुस्तहब काम है उसमें आप इस्तिखारा नहीं कर सकते, मैं बताया हूं, लेकिन वक्त के सिलसिले में आप इस्तिखारा कर सकते। मिसाल मैं देता हूं, बात समझ में आ जाएगी। देखिए, एक मर्तबा आपने हज कर लिया, उम्रा कर लिया, तो आपकी फर्जियत खत्म हो गई। अब उसके बाद जो आप उम्रा करेंगे, हज करेंगे, आपके हक में वो नफिल हज और नफिल उम्रा शुमार होगा। वाज़ेह है ना ये बात? ठीक है। अब नफिली उम्रा करना है आपको, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिखारा ये नहीं कर सकते कि अल्लाह मैं उम्रे पे जाऊं ना जाऊं, इस मसले में नहीं कर सकते आप इस्तिखारा, क्योंकि उम्रा करना फजीलत वाला काम। लेकिन वक्त के सिलसिले में आप कर सकते हैं। मतलब अल्लाह, मिसाल के तौर पे आपको कंफ्यूजन है, भाई मैं रमजान के बाद उम्रा करूं या रमजान के 3 महीने के बाद मैं जाऊं, आपका कुछ बिजनेस का मसला है, ठीक है ना, नफली उम्रा करना है, नफली उम्रे की मैं बात कर रहा हूं, फर्ज उम्रे की नहीं, नफली उम्रा करना है आपको, लेकिन आपको कंफ्यूजन है कि मैं रमजान के बाद जाऊं या फिर 3-4 महीने के बाद जाऊं, तो आप उम्रा करने नहीं करने में इस्तिखारा नहीं कर रहे हैं। यहां पे वक्त के सिलसिले में कर रहे हैं कि क्या मैं इस महीने में जाऊं कि अगले महीने में जाऊं। तो इस मामले में इस्तिखारा आप कर सकते हैं वक्त के सिलसिले में। अब करना है या बाद में करना है, इस वक्त के सिलसिले में आप इस्तिखारा कर सकते हैं। ला, अगर इस महीने में हज के उम्रा करने में बेहतर है तो मेरे लिए आसान कर दे, या अगर बाद में अगर खैर है तो वो मेरे लिए आसान कर दे। तो वक्त के सिलसिले में आप इस्तिखारा कर सकते हैं, लेकिन असल इबादत में आप नहीं कर सकते। इसी तरीके से कभी कभार ऐसा होता है, आपके पास आपने उम्रा कर लिया, हज कर लिया, लेकिन अल्लाह ने आपको और इस्तिताअत दे दिया नफली उम्रा करने का, लेकिन आपका पड़ोसी मुसलमान परेशान है, इतना परेशान है कि खाने पीने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, और बीमार है, हॉस्पिटल में इलाज के लिए कोई मसला नहीं। तब ऐसे वक्त में दोनों कामों में से एक काम करना है आपको, या तो आप अपने पैसों से उम्रे पे जाएं, या फिर यह है कि उन पैसों से आप पड़ोसी की क्या करें, मदद कर दें, उसकी जरूरत पूरी कर दें, उसको हॉस्पिटल दिखा दें। समझ रहे हैं? वो बेचारा मजबूर है, बहुत परेशान है, वो कोई पैसा देने वाला भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में भी आप इस्तिखारा कर सकते हैं, अल्लाह अगर उम्रे पे जाने में खैर है तो मेरे लिए वो आसान कर दे, अगर इसकी मदद करने में खैर और भलाई है तो उसको आसान कर दे। जो मैंने दुआ सिखाई है ना तरीका, उस तरीके से आप इस्तिखारा कर सकते हैं, लेकिन असल इबादत में करना जायज नहीं है इस्तिखारा। इसी तरीके से इस्तिखारा हराम काम को छोड़ने में आप नहीं कर सकते। हराम काम को छोड़ने में, एक आदमी शराब पी रहा है मिसाल के तौर पर, हराम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो? अब वो लोग उलमा बोले, आलिम बोले, मौलाना बोले कि भाई शराब पीना हराम है, छोड़ो, गुनाह कर रहे हो तुम, वो बोलेगा कि मैं पहले इस्तिखारा करूंगा। अगर शराब छोड़ने में भलाई है तो अल्लाह मुझे शराब छुड़वा दे, अगर शराब पीने में ही अच्छाई है उसको कर सकता है इस्तिखारा। नहीं, हराम काम को छोड़ने में इस्तिखारा नहीं कर सकते, छोड़ना ही छोड़ना है, उसमें इस्तिखारा की कोई गुंजाइश नहीं। हराम कामों को छोड़ने में और मकरूहात को, नापसंदीदा चीजों को छोड़ने में इस्तिखारा करना जायज नहीं है। वाज़ेह मसला। वाजिबात और मुस्तहब्बात को अदा करने में इस्तिखारा करना दुरुस्त नहीं है, मुहर्रमात और मकरूहात को छोड़ने में भी इस्तिखारा करना दुरुस्त नहीं है। इस्तिखारा किन चीजों में करना है? बिल इख्तिसार, शॉर्ट में, दुनिया के हर काम में, चाहे छोटा काम हो या बड़ा काम हो, इस्तिखारा कीजिए, बहुत अच्छी बात है। और नफली इबादतों में, मुस्तहब इबादतों में वक्त के सिलसिले में आप इस्तिखारा कर सकते हैं, इसमें कोई हरज की बात नहीं। वाज़ेह है मसला। अब यहां कभी कभार लोग सवाल करते हैं, मौलाना हमारी एक कीमती चीज गुम हो गई है, कोई उठा लिया है, मिल नहीं रही है, हम इस्तिखारा करना चाहते हैं। कोई चीज आपकी मिस हो गई, गुम हो गई, क्या इसमें इस्तिखारा करना है आप? भाई यहां इस्तिखारे का क्या मतलब है? कोई चीज आपसे, आप दुआ करें अल्लाह ताला से, अल्लाह वो चीज गुम हो गई है मेरे तक लौटा दे, ये सही है, दुआ करें आप, लेकिन इस्तिखारा करेंगे क्या आप इसमें? लोगों के कभी कभी सवालात ऐसे रहते हैं, सुन के बड़ा अजीब होता है। मामला ये है कि जहालत की वजह से, आगे जितने भी आप दर्स में बैठे हैं यहां पे, आपने इस्तिखारा के बारे में छोटे छोटे मसलों को मालूम किया, आपको वाज़ेह रहेगा मौलाना बोले थे भाई ये सब चीजों में इस्तिखारा कैसे होता, लेकिन दूसरों को नहीं मालूम होता, लोग करते भी हैं इस्तिखारा, जिन चीजों में नहीं करना उसमें भी करते।
हमारी चीज गुम हो गई है कीमती, हम इस्तिखारा। अच्छा, इस्तिखारे में क्या मांगेंगे आप? अब दुआ में तो अल्लाह अगर इसमें भलाई है तो मेरे लिए आसानी कर दे। अब इसमें क्या मांगेंगे आप? नहीं, इस्तिखारे का कोई मतलब ही नहीं बनता ना चीज गुम होने से। मिसाल के तौर पे किसी आदमी का कत्ल हो गया, कोई आपका करीबी मारा गया, मिसाल के तौर पे किसी ने कत्ल कर दिया, लोग बोलते हैं इस्तिखारा करना चाहते हैं। क्या करेंगे इस्तिखारा उसमें आप? ठीक है, वो मारा गया, आप दुआ कीजिए कि वो जो मारा गया वो पकड़ा जाए, उसकी सजा उसको मिले, इस तरह। अब दुआएं जो दुआएं हैं आम दुआएं करें, लेकिन इस्तिखारा करने का क्या मतलब है? यहां कौन सा इस्तिखारा होगा? तो और भी बहुत सारे सवालात हो सकते हैं, लेकिन आपको मैंने जो जिक्र किया है किन किन चीजों में इस्तिखारा करना है, वो चीजों को आप याद रखेंगे, इंशाल्लाह बात वाज़ेह होगी। फिर भी आपको अगर किसी चीज में डाउट है तो बाद में आप पूछ के मसला हल कर सकते हैं। मैं तेजी के साथ कुछ मसले बताकर अपनी बात खत्म कर देता हूं। लोगों की बहुत सारी गलत फहमियां हैं, उनमें से एक गलत फहमी नमाज इस्तिखारा को लेकर यह होती है कि लोग ये कहते हैं कि नमाज इस्तिखारा करने के बाद ख्वाब में दिखाई देना जरूरी है। ख्वाब में दिखाई देना जरूरी समझते हैं, बोलते हैं कि मौलाना मैं इस्तिखारा किया, ख्वाब पड़ ही नहीं रहा, मुझे ख्वाब में दिखाई नहीं दे रहा। भाई इसका जवाब यह है कि इस्तिखारा करने के बाद ख्वाब में दिखाई देना कोई जरूरी नहीं, किसी हदीस में नहीं मिलेगा कि नबी ने यह कहा हो कि इस्तिखारा कर लेने के बाद आपको ख्वाब में दिखाई देगा। ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। लोगों की गलत फहमी और जहालत की वजह से लोग और परेशान हो जाते। भाई नमाज इस्तिखारा करने से आदमी को इत्मीनान होना चाहिए, लेकिन यहां क्या होता है, ये ख्वाब का जो कॉन्सेप्ट है ना, लोगों में ख्वाब दिखाई देना जरूरी है, उसको लेकर परेशान हो जाते। कैसे परेशान होते? आज इस्तिखारा करते हैं, ख्वाब देख इंतजार में रहते हैं रात का, ख्वाब पड़ेगा, ख्वाब पड़ेगा, ख्वाब पड़ेगा, ख्वाब पड़ा ही नहीं, सुबह उठे ख्वाब ही नहीं दे। मौलाना ख्वाब पड़ा ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या अच्छा क्या, मैं तो इस्तिखारा कर रहा हूं या कर रही हूं, ख्वाब दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, दूसरा दिन इस्तिखारा करते थे, फिर दूसरे दिन का इंतजार करते हैं, ख्वाब दिखता है कि नहीं दिखता है, ख्वाब नहीं दिखता है, परेशान रहते हैं। और कभी कभार नमाज इस्तिखारा के सिलसिले में ये सोचने लगते हैं कि इस नमाज का फायदा ही नहीं हो रहा है। वल्इयाज़ु बिल्लाह, नमाज इस्तिखारा का हर हाल में फायदा होगा, हर हाल में फायदा होगा, लेकिन लोग ये समझ लिए कि ख्वाब में दिखाई देना जरूरी। ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाइयों, याद रखिए इस मसले को। नमाज इस्तिखारा करने के बाद कभी कभार ख्वाब में दिखाई दे सकता है। ख्वाब में क्या दिखाई देगा? आप ख्वाब देख रहे हैं कि एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे कंफ्यूजन थे, दुकान खोलना नहीं खोलना, आपने नमाज इस्तिखारा किया, ख्वाब में दिखाई दे रहा है कि आपके उस दुकान से आपको फायदा हो रहा है, अच्छा लोग खरीद रहे हैं, फायदा हो रहा है, ख्वाब में आपको दिखाई दिया, तो समझ लीजिए कि वो खैर की अलामत है, आप वो दुकान शुरू कर दीजिए। समझ रहे हैं? लेकिन जरूरी नहीं ख्वाब में दिखाई देना, कभी ख्वाब ही नहीं पड़ेगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। तो एक तरीका उलमा ने यह बताया कि कभी कभार ख्वाब में दिखाई दे सकता है, लेकिन जरूरी नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ख्वाब में अगर किसी को नहीं दिखाई दिया तो दूसरी अलामत यह होती है किसी काम के खैर होने या ना होने में आपके दिल को इत्मीनान हासिल होता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा एक लड़की से आपका निकाह तय होना है, कंफ्यूजन है, आप उस लड़की से निकाह करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन आपने इस्तिखारा किया, अल्लाह उस लड़की से निकाह करने में मेरे लिए खैर है तो वो मामले को आसान कर दे, अगर अल्लाह उसके अंदर शर है तो मेरे और उस लड़की के दरमियान जुदाई पैदा कर दे, जो दुआ है। रात में सो गया, ख्वाब दिखाई नहीं देता, लेकिन कभी कभार इत्मीनान हासिल होता है उसके दिल को। क्या इत्मीनान? या तो करने के बारे में इत्मीनान हो जाता, या तो न करने के बारे में इत्मीनान हासिल हो जाता है, दिल मुतमईन हो जाता है, एक जगह ठहर जाता है दिल। ये खुद भी इस बात की अलामत है कि जिस चीज पर उसका दिल इत्मीनान मुतमईन हो रहा है वो उस पर अमल कर ले, उसी में खैर है, उसी में भलाई। ये दूसरा तरीका। तीसरी अलामत उलमा ने यह बताई कि कभी कभार होता यह है कि आप नमाज इस्तिखारा जब करते हैं किसी चीज को करने या ना करने में, तो किस चीज में खैर है ये मालूम करने का बाद उलमा ने यह भी तरीका बताया कि उस काम के लिए जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें खत्म हो जाती हैं, वो रुकावटें खत्म हो जाती हैं, तो समझ लेना कि उसके अंदर खैर है और उसी को आपको करना है, करने की कोशिश करना है। इसकी मिसाल मैं दूं आपको। मिसाल के तौर पे एक नौजवान है, शादी करना चाहता है, दुनिया का मामला है, क्योंकि अक्सर रिश्तों के मामले में इस्तिखारा की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं बार बार ये मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि जिंदगी का मामला है, नए जिंदगी का सफर का आगाज होता है इसमें। तो आदमी एक लड़की से निकाह करने का मामला हो रहा है, घर वाले लोग पसंद कर लिए, लड़का भी पसंद कर लिया, लेकिन
ठीक ठाक है सब मामला, लड़की वगैरह ठीक है, लेकिन लड़के की मां नहीं मान रही है, नहीं बेटा मुझे राजी नहीं है वो लड़की, जबकि सब लोग राजी हैं, ठीक ठाक है, लड़का भी चाहता है कि वही निकाह हो जाए, और अब वो परेशान है, कंफ्यूजन है, मां नहीं मान रही, मैं क्या करूं, करूं क्या ना करूं। इस्तिखारा किया उसने। अब इस्तिखारा करने के बाद जब वो घर जाता है, मिसाल में दे रहा हूं, जब वो घर जाता है तो देखता है कल के दिन मां मुखालिफ थी, शादी नहीं करना बोल रही थी, लेकिन इस्तिखारा करने के बाद पता चला कि मां ने हां कह दिया है। अब जो रुकावट थी ना उसके सामने, वो रुकावट क्या हो गई, खत्म हो गई। तो समझ लेना कि उस लड़की से निकाह करने में खैर है। यह भी उलमा ने कुछ अलामत के तौर पे जिक्र किया है, लेकिन यह गलत फहमी को दूर करने की जरूरत है कि नमाज इस्तिखारा के बाद ख्वाब का दिखाई देना जरूरी है, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं। और यह बात भी आप याद रखिए, ये दो तीन चीजें मैंने जिक्र किया ना, या तो ख्वाब में दिखाई देना, कभी कभार ऐसा होता है, कभी दिल मुतमईन हो जाता है, कभी रुकावटें खत्म हो जाती है, कभी तीनों चीजें नहीं होती, कभी तीनों चीजें नहीं होती हैं, तब भी आदमी परेशान नहीं होना, ये क्या भाई फायदा ही नहीं हो रहा नमाज इस्तिखारा का, तब करना क्या मालूम, तब करना क्या मालूम। उलमा कहते हैं नमाज इस्तिखारा बार बार कीजिए आप, एक बार किए कुछ भी नतीजा जाहिर नहीं हो रहा, करना नहीं करना, फिर कीजिए, फिर कीजिए, बार बार कीजिए आप। बार बार करने के बाद भी ना ख्वाब में दिखाई दिया, ना किसी काम पे दिल मुतमईन हुआ, ना रुकावटें खत्म हुई, कुछ भी नहीं हो रहा है, तब क्या करेंगे आप, परेशान नहीं होना, अच्छे लोगों से मशवरा करना। भाई मैं नमाज इस्तिखारा भी बहुत बार किया हूं, अब ये दुकान शुरू करना है या लड़की से शादी करना है, कोई चीज मेरे सामने जाहिर नहीं हो रही, कुछ लोगों से आप मशवरा करें, जो अच्छे लोग होते हैं, दीनदार किस्म के लोग, मुत्तकी किस्म के लोग और तजुर्बाकार लोग होते हैं, उनसे मशवरा कीजिए। उनके मशवरे को और ये इस्तिखारा को सामने रख के कोई भी काम शुरू कर दीजिए आप, कोई भी काम, या तो करना दुकान खोल लीजिए या तो दुकान बंद कर दीजिए, या फिर उस लड़की से निकाह करने को हां कर दीजिए या तो छोड़ दीजिए, कोई काम है आगे बढ़ जाइए आप। और उसके बाद इस्तिखारा और मशवरे के बाद जब आप काम आगे बढ़ाएंगे ना, तो उस काम में अल्लाह ताला जरूर खैर पैदा करेगा। अगर खैर आपके सामने जाहिर भी नहीं हुआ, तब भी इंशाअल्लाह फ्यूचर और मुस्तकबिल में अल्लाह की तरफ से खैर आपको मिल जाएगा। ये नमाज इस्तिखारा के हवाले से ये बात याद रखिए। मैं कुछ और भी मसले हैं, मैं बड़ी तेजी के साथ बता दूं आपको, बताकर अपनी बात खत्म कर देता हूं। बहुत अहम मसले हैं। इस्तिखारा करने के फवाइद क्या है, क्या फायदे मिलते हैं इस्तिखारा करने के। इस्तिखारा करने के बहुत सारे फायदे मिलते हैं, मैं आपके सामने वो बड़ी तेजी के साथ जिक्र कर देता हूं। देखिए, नमाज इस्तिखारा का सबसे पहला फायदा यह होता है कि इंसान और बंदे का ताल्लुक अल्लाह रब्बुल आलमीन से मजबूत होता है और वो अल्लाह से करीब होता है। और दूसरा फायदा इस्तिखारा का यह होता है कि इस्तिखारे में बंदा अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह के इल्म के हवाले कर देता है और अल्लाह के हर फैसले से राजी हो जाता है। और तीसरा फायदा यह होता है कि फ्यूचर में, मुस्तकबिल में इस्तिखारा करने वाले को अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तौफीक मिलती है और सही रहनुमाई नसीब होती है। चौथा बड़ा फायदा यह मिलता है इस्तिखारा करने की वजह से कि इस्तिखारा करने वाले के साथ अल्लाह की रहमत और उसकी मदद शामिल हाल होती है, जिसकी वजह से इंसान आगे के कामों को बड़ी आसानी से कर गुजरता है और उसमें बरकतें अल्लाह तबारक व तआला पैदा कर देता है। इस्तिखारा करने का पांचवा फायदा यह है कि इस्तिखारा करने की वजह से इंसान का भरोसा असबाब पर होने के बजाय अल्लाह पे भरोसा होने लगता है, उसका अल्लाह पे भरोसा करने लगता है ना वो, अरे मैंने इस्तिखारा किया, अल्लाह से मैंने खैर मांगा तो अल्लाह ही मुझे खैर देगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर पुख्ता भरोसा करने लगता है। और इस्तिखारा करने की वजह से एक सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि फ्यूचर में जो उसका अंजाम होने वाला है वो बेहतर होगा, बुरा होगा, क्या होगा, उससे बेखौफ हो जाता है, वो टेंशन नहीं लेता। और आखिरी फायदा यह होता है कि इस्तिखारा करने की वजह से इंसान हर किस्म के जो है डाउट से, परेशानियों से आजाद हो जाता है और दिल में एक किस्म का इत्मीनान और सुकून महसूस करता है। और मेरे भाइयों, अल्लाह की कसम, आपको अगर किसी भी मामले में शुबा है, डाउट है, परेशान है, आप करना नहीं करना, आप इस्तिखारा कर लीजिए, अल्लाह ताला इसकी बरकत की वजह से आपके दिल में उस काम के सिलसिले में इत्मीनान पैदा कर देता है। ये मैं आपके सामने इस्तिखारा के कुछ फवाइद आपके सामने जिक्र किया। एक सवाल ये किया जाता है, अब एक मर्तबा इस्तिखारा किए, कोई चीज सामने नजर नहीं आई या कोई
नतीजे तक नहीं पहुंचे कि बार बार कर सकते हैं क्या? जवाब यह है कि बार बार आप कर सकते हैं। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, उन्होंने कहा था जब काबतुल्लाह को नए सिरे से बनाने का वक्त आया, काबतुल्लाह मतलब बारिश की वजह से गिर गया था, तो अब्दुल्लाह इब्न जुबैर चाह रहे थे कि फिर अच्छे से काबतुल्लाह को बनाएं। ठीक है, तो उस वक्त अब्दुल्लाह बिन जुबैर कहते हैं कि मैं 3 मरतबा अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिखारा करूंगा, फिर उस काम को करने का पुख्ता अज़्म और इरादा करूंगा। इससे मालूम हुआ कि एक काम के लिए बार बार आप कर सकते हैं इस्तिखारा, एक काम के लिए आप बार बार कर सकते हैं इस्तिखारा, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते अल्लाह ताला से 3 मरतबा दुआ करते, और इस्तिखारा भी दुआ की एक शक्ल है। ठीक है, तो ये मसले को भी आप याद रखिए। एक मसला आता है, कभी कभार इस्तिखारे की जरूरत है आपको, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि आप नमाज पढ़ के दुआए इस्तिखारा पढ़े। कभी होता है, मिसाल के तौर पे एक औरत इस्तिखारा करने की जरूरत है, लेकिन हैज से है, वो हालत हैज में है, हालत निफास में। एक औरत जब हालत हैज में होती है, तकरीबन 6-7 दिन उसमें चले जाते हैं, कभी 10 दिन चले जाते हैं। लेकिन एक औरत निफास की हालत में होती है, बच्चे की पैदाइश के बाद से जो खून जारी होता है, कितने दिन रहता है वो? ज्यादा से ज्यादा 40 दिन ना। अब 40 दिन तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती ना। अब उस दौरान उसको नमाज इस्तिखारा करने की जरूरत पेश आ गई। अब नमाज तो नहीं पढ़ सकती वो, क्या वो औरत 40 दिन तक इंतजार करेगी क्या इस्तिखारा करने के लिए कि 40 दिन गुजरने के बाद मैं 2 रकात नमाज पढ़ के इस्तिखारा करूंगी? हाँ, इसी कोई जरूरत नहीं। ये जरूरत है, जरूरत के वक्त क्या करे, वो नमाज ना पढ़े, डायरेक्ट वो अल्लाह से हाथ उठाए अल्लाह के सामने और दुआए इस्तिखारा पढ़ ले। वो जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्ताखिरुका बिइल्मिक, वो दुआ पढ़ ले। तो मालूम यह हुआ कि कभी कभार जरूरत के वक्त 2 रकात नमाज अदा किए बगैर भी आप इस्तिखारा कर सकते हैं, सिर्फ दुआए इस्तिखारा आप पढ़ लें। एक अहम मसला यह भी है कि दुआए इस्तिखारा करने से पहले आप लोगों से मशवरा भी कर लें। दुआए इस्तिखारा करने से पहले आप लोगों से मशवरा कर लें। दुकान ओपन करने जा रहे हैं, कोई दुनिया का काम करने, कंफ्यूजन, आप मशवरा करें लोगों से, तजुर्बेकार लोगों से, दीनदार लोगों से। इमाम नववी रहमहुल्लाह कहते हैं ये मुस्तहब है, बेहतर बात है कि आदमी इस्तिखारा करने से पहले लोगों से मशवरा करे, फिर इस्तिखारा करे, फिर आगे बढ़े। ठीक है, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने क्या कहा कि आदमी अगर लोगों से मशवरा कर ले, इस्तिखारा कर ले, फिर उस काम को आगे बढ़ाए, तो वो किसी भी काम में शर्मिंदा नहीं होगा। तो मशवरा भी करना है आप, डाउटफुल कामों में क्या करना है आपको? लोगों से मशवरा भी करना है और इस्तिखारा भी करना है। सवाल ये है, लोग कभी कभार ये गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं, मौलाना मैं इस्तिखारा किया, इस्तिखारा किया, इस्तिखारा किया, इस्तिखारा कई बार करने के बाद मैं दुकान ओपन किया, मैं फलां लड़की से निकाह किया, लेकिन मेरी जिंदगी में सुकून ही नहीं है, वो दुकान अच्छा नहीं चल रहा, लड़की के साथ मेरा मामलात खराब है। तो ये आदमी सोचने लगता है कि भाई दुआए इस्तिखारा का कोई फायदा ही नहीं हुआ है। नौजुबिल्लाह, कभी कभार अल्लाह के बारे में बुरे ख्यालात लाने लगता है। याद रखिए, अगर इस्तिखारा करने के बाद कोई काम शुरू करते हैं और उसके बाद भी घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो यकीन मानिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है, आप उस फैसले से राजी हो जाइए। इतना काम करना है आपको, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ये नहीं सोचना कि इस्तिखारा का कोई फायदा नहीं, इस्तिखारा का फायदा होगा। वो अल्लाह ताला आपकी आजमाइश के तौर पर कर सकता है, अल्लाह की बड़ी हिकमत है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन नुकसान को देखकर आप सलाते इस्तिखारा पर उंगलियां नहीं उठाना, अल्लाह की कुदरत और उसकी तकदीर पर उंगलियां नहीं उठाना। आप ये सोचना कि ये नुकसान हो रहा है तो ये मेरी तकदीर का नतीजा है, ये अल्लाह का फैसला है, मैं इससे राजी रहूंगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में आप हुस्न ज़न रखने की कोशिश करना चाहिए और अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। मोहतरम हज़रात, सलात इस्तिखारा से मुताल्लिक आखिरी मसला बताकर अपनी बात खत्म कर देता हूं। सवाल करते हैं लोग कभी कभार कि मिसाल के तौर पर मेरा मामला है, मैं डाउटफुल हूं किसी काम को करने में, मेरी जरूरत है दुआ इस्तिखारा की, तो क्या मैं मेरे करने के बजाय किसी आलिम को बोल दूं क्या मेरी तरफ से तुम इस्तिखारा कर लो? हाँ, उसको मिसाल के तौर पे एक आदमी कभी गुनहगार होता है, नमाजों का पाबंद नहीं होता, अब उसको इस्तिखारा के बारे में सुन लेता है, कोई तिजारत शुरू करने जा रहा है, कंफ्यूजन है करूं ना करूं, तो दिल में आया कि इस्तिखारा करो। अब ये सोचने लगता है कि भाई मैं तो गुनहगार हूं, चलो मैं नहीं, एक आलिम से करवाऊंगा इस्तिखारा। ऐसा करना जायज है क्या? मेरी जरूरत है, मुझे इस्तिखारा करना है, मैं किसी और से करवा सकता हूं क्या इस्तिखारा? इसका जवाब यह है कि आप नहीं करा सकते। आपकी अपनी जरूरत है तो आपको अपना इस्तिखारा करना है। समझ लें, ये बुनियादी चीज है, ये बुनियादी मसला है। हां, कभी कभार एक काम कई लोगों से जुड़ा हुआ होता है,
तब ऐसी सूरत में कई लोग कर सकते हैं इस्तिखारा। मिसाल में दूं, मिसाल में देता हूं, आप अगर किसी लड़की के वालिदैन हैं, भाई हैं, आपकी जिम्मेदारी है उस लड़की के निकाह करने का मामला है, ठीक है ना। तो अब ऐसी सूरत में लड़की के पास एक रिश्ता आ जाता है, पेरेंट्स के पास फला लड़के का रिश्ता। अब वहां पे वालिदैन को शादी कराना है बच्ची की, और बच्ची को भी शादी होना है। अब ये शादी का जो मसला है सिर्फ लड़की से जुड़ा हुआ है या लड़की के साथ उसके पेरेंट्स से भी जुड़ा हुआ है? उसके पेरेंट्स से भी जुड़ा हुआ है। शादी करने वाली लड़की है, लेकिन कराने वाले कौन है? कौन है कराने वाले? उसके वालिदैन। काम एक है लेकिन कई लोगों से जुड़ा हुआ है। तो ऐसी सूरत में वो लड़की भी इस्तिखारा करे, वालिदैन भी इस्तिखारा करे। समझ रहे हैं आप? एक ही काम अगर कई लोगों से जुड़ा हुआ है तो कई लोग कर सकते हैं इस्तिखारा एक ही काम के लिए। उसके अलावा सिर्फ आपका अपना मसला है, आपकी अपनी जरूरत है, तो आप ही इस्तिखारा करेंगे, किसी और को नायब नहीं बनाएंगे आप। समझ रहे हैं? तो ये कुछ बुनियादी मसले थे सलाते इस्तिखारा के हवाले से। ये बहुत अहम नमाज है, इसको मिस मत कीजिए। आप दुनिया, कोई भी स्टूडेंट है, फला कॉलेज जाना है क्या नहीं जाना है, फला कॉलेज में पढ़ना है, वो कॉलेज जाना है, ये कॉलेज जाना है, एसएलसी के बाद पीयूसी वहां ज्वाइन होना है, यहां जो, देखो ये स्टूडेंट के साथ भी मसले पेश आते हैं। हत्ता के मदरसे में पढ़ने वाले तलबा के साथ, देखिए रईदुल में जाके पढ़ना है कि मालेगो में जाके पढ़ना है कि किस इदारे में, बनारस में जाके पढ़ना है, कभी कभार कंफ्यूजन रहता है किस इदारे में जाकर पढ़ना है। तो वो इस्तिखारा करें, दुनिया के मामलात में इस्तिखारा करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है, हर छोटे और बड़े कामों में इस्तिखारा होना चाहिए। इस सिलसिले में बड़ी कोताही पाई जाती है। इस्तिखारा आप कर लेंगे इंशाअल्लाह, शर्मिंदा नहीं होंगे आप। तो मैं समझता हूं कि इतनी बातें काफी। अल्लाह से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो नमाज इस्तिखारा से मुताल्लिक मसाइल बताए गए हैं उसको अच्छे से समझने और नमाज इस्तिखारा का एहतिमाम करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सारे मामलात में खैर और भलाई अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी जिंदगियों में आने वाले हर किस्म की परेशानी, फसाद और शर से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी का कोई सवाल है तो करें, बाकी तो क्लास खत्म है, जो जाना चाहें चले जाएं। अगर किसी का कोई सवाल इसी से जुड़ा हुआ है तो करें, फिर इंशाल्लाह दर्स खत्म हो जाए। जी हाँ, सवाल यह है कि कभी कभार ये दुआए इस्तिखारा, अब मिसाल के तौर पे ये दर्स सुनने के बाद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग करने की जरूरत पड़ जाए रात में, तो सवाल यह है कि नहीं आती तो क्या करें। उसका तरीका यह है, पहला तरीका कि आप जिस जबान आप जानते हैं, कन्नड़ा या जो, उसमें आप लिख लें, ठीक है। जब आप नमाज पढ़ लेंगे 2 रकात, नमाज पढ़ने के बाद जब आप दुआ करते हैं ना, तो आप हाथ रख के देख के पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह, ठीक है। लेकिन इसी को आदत नहीं बनाना। ये कब तक है? ये याद करने तक। कभी लोग क्या करते हैं, इसी को पूरी जिंदगी भर कंटिन्यू करते रहते हैं। नहीं, याद भी करते रहना है घर पे जाके, आप याद होने तक आप देख के उसको पढ़िए, ठीक है, काफी है इंशाअल्लाह। कभी कभार अरबी जबान में नहीं आई दुआ, देख के पढ़ना भी नहीं आता, अब जरूरत पड़ गई ना इस्तिखारा करने की, क्या करे, वही दुआ पढ़ेगा पूरी, अब पढ़ना नहीं आता, हाँ, याद भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में पहली बात वो सीखने की कोशिश करे सुन सुन के। उससे पहले, सीखने से पहले अगर जरूरत पड़ गई तो ऐसे वक्त में वो अपनी जबान में दुआ कर दे, हाथ उठाए और अपनी जबान में, ऐ अल्लाह मैं ये काम करने जा रहा हूं, अगर इसमें भलाई है तो मेरे लिए आसानी कर दे, अगर इसमें बुराई है तो मेरे लिए, मुझसे वो फेर दे। ये जो तर्जुमा है उसका, वो अपनी जबान में, लेकिन वो भी कंटिन्यू नहीं, सीखने तक, तो वो सुनकर भी सीख ले। जी हाँ। अच्छा, एक सवाल के, अच्छा पूछिए। हाँ, कंफ्यूजन, हाँ 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 हाँ। अगर आपको इत्मीनान है कि यही करना है, इसी में आपको भलाई लग रही है, तो जरूरत नहीं है। उलमा यही कहते हैं जब मामले में कंफ्यूजन है, इश्तिबाह है, तब करें आप। असल एक मसला छूट गया था शॉर्ट में 1 मिनट में, कि इसका वक्त क्या है सलाते इस्तिखारा, कोई खास वक्त है क्या इसका? जवाब यह है कि कोई खास वक्त नहीं है। किसी भी वक्त आपको जरूरत पड़ जाए इस्तिखारा की, आप इस्तिखारा, हत्ता कि जो जिन औकात में नफिल नमाज पढ़ने से मना किया गया उस वक्त भी आपको जरूरत पड़ रही है, तब भी आप सलाते इस्तिखारा पढ़ सकते हैं। कोई इसका वक्त फिक्स नहीं है। जब भी आपको जरूरत पड़े इस्तिखारा की, तब आप 2 रकात नमाज पढ़ के इस्तिखारा कर लें। जी हाँ।
वित्र की बिल्कुल कर सकते हैं आप, रात में उठ के पढ़ सकते हैं आप, कोई वक्त फिक्स नहीं इसका। जब आपको जरूरत पड़ी तब आप इस्तिखारा की 2 रकात नमाज पढ़े नफिल, और उसके बाद वो दुआ कर ले। जी ठीक है, उम्मीद करता हूं कि मसले वाज़े होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस किस्म के मजालिस में बैठकर इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जाते जाते इख्तिताम मजलिस की दुआ पढ़ते जाएं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।